Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we've built to Facebook. So, you know, we had a great conversation last year in Delhi. And I'm looking forward to having a conversation with you and our entire community about how you see the future of India and the world. And when I think about the future, I'm personally excited about India for a number of reasons. First, one of the greatest opportunities we have in the world today is to connect everyone to the internet. The internet provides access not only to entertainment and communication, but also vital information around health, education, and jobs. In fact, for every 10 people who gain access to the internet, about one person gets lifted out of poverty and about one new job gets created. Now, there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. So I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's commitment to Digital India to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed by the example Prime Minister Modi has set of using the internet and social media to communicate directly with Indian citizens. Whether spreading messages of peace or campaigning for women's rights or children's development or Digital India, it's fitting that the leader of the world's largest democracy is also setting the example for all world leaders for how they should connect with their citizens in the future. When everyone can make their voices heard online, that's when we can have meaningful conversations about the future. And that's how society can come together and achieve these shared goals. So, you know, the last time that a Prime Minister of India visited California was in 1982. And a lot has changed since then. Today, India is a global leader. Indian businesses and culture are transforming people's lives around the world. And for India to keep making progress, India needs to be a leader online. And Prime Minister Modi, you are an example of what that looks like. So I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. Thank you. Thank you. मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे फेसबुक के हेडक्वार्टर पे आकर के दुनिया जिसके साथ जुड़ी है उनके साथ मुझे आज रूबरू में जुड़ने का अवसर मिला है। विज्ञान और अध्यात्म का नाता ऐसा हो भी सकता है, वो शायद मार्क ने आज न बताया होता
तो दुनिया को पता नहीं चलता। अमेरिका से एक नौजवान कुछ करने के सपने देखता है, और विज्ञान की दुनिया में जिसने सफलता पाई है, वैसे उसके गुरु उसे कहते हैं कुछ भी करने से पहले हिंदुस्तान जाओ, वहाँ किसी टेम्पल में जाओ और वहाँ जाकर के तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ये बात अपने आप में एक अजूबा है। दुनिया के लोगों के लिए आज मार्क आपकी बात सुनकर के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, और मैं आशा करता हूं कि जो प्रेरणा आपको मिली है, जिस प्रेरणा से आपने इस काम को प्रारंभ किया है, ये सिर्फ कंपनी की बैंक अकाउंट को बढ़ाने वाला काम नहीं रहेगा, ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों की आवाज़ बनेगा। ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के एस्पिरेशंस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगा। और ये आपका प्रयास सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने की जिनकी जिम्मेवारी है, उनको जगाए रखेगा। और उस अर्थ में मैं आपके इस प्रयास को अभिनंदन करता रहूं, धन्यवाद करता हूं। आपने सवाल पूछा कि लोग भारत के पास बड़ी आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब आप भारत आए, आप किसी टेम्पल में गए बड़ी आशा भरी नज़र से, और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपका अनुभव कहता है कि जो भारत से आशा अपेक्षाएं हैं, सामर्थ्य भारत में है, ये आपका खुद का अनुभव बता रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। और उस काम को करना है मुझे, तो 3 बातों पर मैं बल दे रहा हूँ: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप वो लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है, और मैं सर्विस सेक्टर की ताकत बहुत बड़ी देख रहा हूँ। अकेला अगर टूरिज्म ले ले, मैं अकेला टूरिज्म, भारत के पास टूरिज्म के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, जॉब क्रिएशन के लिए इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, और आज की टेक्नोलॉजी ने विश्व को इतना निकट ला करके रख दिया है, इतने अपनेपन को पैदा कर दिया है। और टूरिज्म अगर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर को, जॉब क्रिएशन को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने में एक बहुत बड़ी ताकत बनती है।
और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि पिछले साल सवा साल में भारत के प्रति जो नजरिया बदला है, आज कहीं पर भी किसी भारतीय को किसी विदेशी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है तो वो बड़ी गर्व के भाव से देखता है। इतने कम समय में ये परसेप्शन बदल जाना, ये उस विश्वास की नींव के कारण होता है। अगर 15 महीने में सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है तो वो खोए हुए विश्वास को हमने वापस लाया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल को लाए हैं। और मैं मानता हूं वही चीज़ों को बदलाव करते हैं। आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट भी जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे डॉक्टर आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आईसीयू वाला पेशेंट भी बाहर आ जाता है। Thank you. All right. So we have the first question from the thread. We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. So that's Wow. pretty incredible engagement. And several people have flown in today to ask their questions. But before we call them up, I actually am going to start with one for you. You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. And did you at that point think that social media and the internet would become an important tool for governing and citizen engagement in foreign policy? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है। मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइड से भी अगर कोई श्योर सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है। मेरे लिए सोशल मीडिया ने ये काम किया। मुझे बहुत ही कम समय में 2-4 शब्दों से मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मिल जाती थी। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं। लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया। 2-4 शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था, एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला। मैं जुड़ता चला गया और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया, दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया। और इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता। वरना क्या है, लोग कहते हैं यहाँ आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको, उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और इससे आपका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया। जब मैं सरकार में आया
तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है। और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को, सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहाँ कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है। और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का। देखिए, डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे। दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। आज मैं चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज़ थे, और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहाँ किसी ने कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी। वो वायरल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मजा तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। अब देखिए, ये डिप्लोमेसी का नया रूप है जो सीधा जनता से जोड़ता है। और शायद विश्व एक परिवार है, ये फॉर्मेशन में ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है।
one of the reasons